Hello everyone, welcome to your favorite channel English Mania. Today we will cover some error spotting questions of pronouns. In the previous videos we have done two parts of pronouns. One is introductory part of pronoun and the second one is related to rules. So whatever we will do today will be the practical application of the rules that we had seen in the previous video, right? So let's see the first one. First is, unless two or more members object to him joining the club, we shall have to accept his application for membership. So in your examination you will have such structure. You have to remember the cardinal rules that we had done in the previous video. The statement will be divided into parts, that will be A, B, C, and D will be no error. This structure is very rampant in SSC examinations and defense examinations like NDA, CDS, MNS, etc. So what is the error? Now people, you know here, one thing is here that joining, we had seen in the video that joining, अब अभी तो join नहीं कर रहा है, कह रहे हैं उसका join करना, तो उस वक्त ज्वाइन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ज्वाइनिंग इज जिरंट. हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि ऐसा वर्ड जिसमें आईएनजी लगा हो बट इनएक्टिव हो उस वक्त उसे जिरंट कहते हैं. और जिरंट से पहले हमेशा अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो प्रोनाउन हमेशा पोजेसिव केस में होना चाहिए, राइट. सो उसका ज्वाइन करना है, उसका ज्वाइन करना, यहाँ पे पोजेशन चाहिए उसका, तो उसका हिम नहीं होता है, इट शुड बी हिज हेयर, हिज, राइट. तो इट शुड बी हिज जॉइनिंग. तो कौन से रूल को रेफर करें हम? रूल इज दैट इफ अ प्रोनाउन प्रीसीड्स अ जेरेंड, दैट प्रोनाउन शुड बी इन पोजेसिव केस. लेट्स सी नेक्स्ट वन. आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द contest, और नो एरर. Now see the statement very carefully and get the error. Now what is the error? You will see again that is the same rule that we have just seen. Winning is gerund here. क्या कहना चाह रहे हैं कि I was surprised and pleased when I was informed of me winning the contest. मेरे contest जीतने पर या जीतने की information, right? तो मेरे contest जीतने की उस वक्त नहीं जीता है. सिंपली क्या कह रहे हैं कि मैं सरप्राइज और प्लीज था जब मुझे इन्फॉर्म किया गया मेरे कॉन्टेस्ट जीतने के बारे में. तो उस वक्त नहीं जीत रहा है, जीतता पहले था, इन्फॉर्म किया. फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आया है लेकिन आप बाद में देख रहे हो, तो दैट कैन बी द सिचुएशन. अगेन द सेम थिंग, प्रोनाउन प्रोसीड कर रहा है जिरंड को, तो इट शुड बी इन पोजेसिव केस. पीपल, इट शुड बी माई इन दिस केस. नेक्स्ट वन. अब रिमेंबर वन थिंग है, इन द रैंडम क्वेश्चंस, अभी तो हम सिर्फ प्रोनाउंस कर रहे हैं, बट इन रैंडम क्वेश्चंस इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट गेट which part of speech is there, which error is there. So you need to practice any part of speech. Once you practice more and more, then only you will be like you will have a very good command over the rules. And the key point and the key to error spotting is just the practice portion. Keep practicing and remember that you have to go step by step. First, practice a particular topic, for example nouns. See the rules, revise the rules, and then do at least 40 to 50 questions of different types based on nouns only. Then go with pronouns and go with each topic like this. When you are done with the individual topics and their questions, then go for the random questions. Then you will be able to get. If you will not practice the questions of each topic separately, then it will become very difficult for you to identify in random errors. So let's see this one. Our dog may look fierce, but that wouldn't hurt a fly. अब dog जो है that is animal, और animal के लिए हम क्या pronoun यूज करते हैं? Animal के लिए हम pronoun यूज करते हैं usually न्यूट्रल, इट यूज करते हैं. अब देखिए क्या एरर है इसमें.
ओके, तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज किया गया है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इट. इट वुडंट हर्ट अ फ्लाई. एनिमल के लिए हम यूजुअली इट यूज करते हैं. नेक्स्ट वन, नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, इजंट इट. नाउ हमने रूल देखा था कि जहां पर प्रोनाउन वन लग जाए उस स्टेटमेंट में आप सिर्फ वन प्रोनाउन ही यूज कर सकते हैं या वन की कोई और फॉर्म, जैसे वंस, राइट. तो आप वन यूज कर सकते हैं या वंस यूज कर सकते हैं उस स्टेटमेंट में जहां पे प्रोनाउन वन लग जाए. तो यहां पे आप यू सीइंग हियर वन इज द प्रोनाउन, सो आई कांट यूज एनी अदर प्रोनाउन है, राइट. तो इट प्रोनाउन है, यहाँ पे सेम स्टेटमेंट में एक बार वन लग चुका है लेकिन बाद में उसी पर्सन के लिए इट लगा दिया है. सो दिस कैन नॉट बी डन. इजंट इट नहीं, इजंट वन होना चाहिए. ये तो बात थी प्रोनाउन की, राइट. नंबर 2 थिंग, जो भी आपने यहाँ पे वर्ब यूज किया, जैसे यहाँ पे कैन मॉडल यूज किया गया है, तो आप इससे नहीं बना सकते, आप सेम लेंगे. यहाँ पे अगर इज होता तो यहाँ पे भी आप क्वेश्चन इससे बना सकते थे. तो कैन है तो क्वेश्चन किससे बनाना होगा, हमें कैन से क्वेश्चन बनाएंगे, राइट. सो नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, आप कैन लगाओगे और आगे वन होना चाहिए. प्लस नंबर 1 थिंग हमने देखा कि वन आएगा. नंबर 2 हमने देखा कि कैन यहाँ पे मॉडल यूज किया गया था, तो आगे क्वेश्चन जो बना रहे हैं आप उस स्टेटमेंट पे बेस्ड उसमें भी कैन ही यूज करेंगे. नंबर 3 आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पे एक स्टेटमेंट हो, बीच में कॉमा है और आगे एक क्वेश्चन बना हुआ है उस पे बेस्ड, तो ऐसे में आपको चेक करना है, आपको देखना है कि इनमें से सिर्फ एक में नेगेटिविटी रहे और वो होनी ही चाहिए. जैसे यहाँ पे नो वन नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, तो नेगेटिविटी है, राइट. और यहाँ पे भी नॉट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर यहाँ पे ऑलरेडी पहले में है तो सेकंड वाले क्वेश्चन जो आपने बनाया उसमें ये नहीं लग सकता. तो जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो या तो आगे लगेगा या पीछे लगेगा, और आगे लगा हुआ है तो पीछे नहीं लगेगा. अगर ये होता कि वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, तो आप यहाँ पे नॉट लगा सकते थे, राइट. तो आप यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए कांट. कांट वन, दैट विल बी द करेक्ट थिंग हियर. नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, कांट वन, सॉरी कैन वन, नॉट नहीं आएगा, कैन वन, क्योंकि नॉट ऑलरेडी पीछे आ चुका है, राइट. तो 3 चीजें आपको ऐसे स्टेटमेंट्स में ध्यान रखना है. पहला आपको देखना है कि प्रोनाउन क्या लगेगा. दूसरा, कौन सा मॉडल या वर्ब पहले स्टेटमेंट में किया गया है, पहले स्टेटमेंट में वही आप यहाँ यूज करेंगे. अगर यहाँ पे होता आर तो आप यहाँ पे भी आर से क्वेश्चन बनाते, राइट. और थर्ड है नेगेटिविटी. अगर फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में नेगेटिव नहीं है तो दूसरे में यूज करेंगे क्वेश्चन में, और अगर यहाँ नेगेटिव है तो क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए नेगेटिविटी, राइट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई. अब आपको पता है बिटवीन इज अ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाले प्रोनाउंस हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होने चाहिए. सो यू इज ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस बट आई इज नॉट ऑब्जेक्टिव, सो इट शुड बी me in this case. Quite easy. The last thing that the fond mother gave her only son was his blessing. Now, blessing किसने दी? Fond mother ने. किसको? अपने son को. तो blessing किसकी है? mother की blessing है ना, तो mother के लिए his तो नहीं आएगा, it should be her blessing. This is quite easy. In your examination also you will find such kind of questions that will have very minute error, but we usually get confused in such kind of errors, so keep heed. Next, the front page story was about a school girl that had hurt herself while saving a child in an accident, or no error. So in this question you will see girl use किया गया है और आगे जो स्टेटमेंट है वो गर्ल के लिए कहा गया है, और इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ता है दैट, राइट. गर्ल ह्यूमन है तो दैट तो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? हु. दैट को यूजुअली हम जो है ह्यूमंस को रेफर करने के लिए यूज नहीं करते, तो इट शुड बी अ स्कूल गर्ल हु हैड हर्ट हरसेल्फ.
Next, it's not I who is to blame. Now here, this is very tricky question, which is a question of pronoun. I, ठीक है, who तो ठीक है, I subject है तो उसके साथ who लगा relative pronoun, that's very correct. But what is the error? हम क्या बोलते हैं? For example, आप कह रहे हो मैं जा रहा हूं, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे I am going. और आप अपने लिए कुछ और भी स्टेटमेंट आके बोलना चाह रहे हो, राइट? जैसे आपके और भी स्टेटमेंट आके बोलना चाह रहे हो, राइट? जैसे आप कह रहे हो मैं जो कि जा रहा हूं वो मिस्टर सुरेश का बेटा है. अपने लिए कहा आपने मैं जो कि जा रहा है वो मिस्टर सुरेश का बेटा है. तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे आई हु एम गोइंग इज सन ऑफ मिस्टर जो भी है, मिस्टर सुरेश फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो आई हु एम गोइंग आप बोलोगे, मैं जो कि जा रहा हूं. अब आई हु इज गोइंग लिखा हुआ है इसमें, हु इज, तो आई तो इज नहीं लेता, इट शुड बी आई एम. सो वेन एवर यू विल सी आई और हु लगाओ बीच में, देन सर्च फॉर द वर्ब हेयर, इट शुड बी एम, करेक्ट वर्ब. नेक्स्ट वन, इट्स मी. वेरी सिंपल इट seems like, but people this is quite tricky. अब me आप इसमें गलती है, क्यों है? Try to find it, क्यों है? इसमें आना चाहिए I, और मैंने आपको बताया था कि me लगाए ऑब्जेक्टिव केस है me, I सब्जेक्टिव केस है, राइट? me is objective and I is subjective. दोनों में से कौन सा लगाए यहाँ पे? वो सर्च करने के लिए मैं क्वेश्चन बनाऊंगी, राइट? और मेरा आंसर ये होना चाहिए, मैं होना चाहिए. तो क्वेश्चन बनेगा हु इज इट, राइट? आंसर ये आ रहा है. क्वेश्चन किससे बन रहा है? हु से. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन हु से बनेगा आप सब्जेक्टिव केस को प्रेफर करोगे प्रोनाउंस में, राइट? तो इट शुड बी आई, इट्स आई. और वैसे भी व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू से समथिंग, फॉर एग्जांपल आपने किसी को फोन किया है और वो बोल रहा है कौन है, तो आप कहते हो इट्स मी, राइट? बट दैट्स रॉन्ग, इट शुड बी इट्स आई, ये मैं हूं. नेक्स्ट, put you in my position and you will realize the problems faced in my profession. Now this is quite simple. हम कहना चाह रहे हैं अपने आप को मेरी जगह रखो, तो हम emphasize कर रहे हैं कि तुम अपने आप को, it should be yourself, emphatic pronoun. Next, each of them has to understand their responsibility. This is quite easy. Indefinite pronouns जितने भी होते हैं, each, every, राइट, एनी वन, सम वन, समबडी, वो हमेशा सिंगुलर लेते हैं, तो सिंगुलर फॉलो करेंगे हम आगे. सिंगुलर प्रोनाउन होना चाहिए यहाँ पे, इट शुड बी हिज या हर यूज कर सकते हैं आप. नेक्स्ट वन, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव एंटर्ड अ गुड नेम. द सेम रूल दैट वी हैव डन जस्ट नाउ. एवरी वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट जहां पे आपको श्योर नहीं है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं. एवरीवन कह रहे सब, लेकिन वो सब कौन है वी डोंट नो. सो इन सच केस वी गो विद द सिंगुलर वर्ब, राइट? तो एवरीवन विल टेक हैज.